नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। एशिया आर्थिक संवाद 2024 में एस जयशंकर ने ब्रीफिंग की है। विदेश मंत्री ने इस दौरान अहम जानकारी दी है। रघुनाथ माशेलकर, एम्बेसडर गौतम बंबावाले, फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear students. I am truly delighted to address the 8th Asia Economic Dialogue. In the years that have passed, I note that the dialogue has emerged as a prominent forum on geoeconomics. This edition focuses very appropriately on the geoeconomic challenges of our times. Today, these broadly fall into three categories. One is the supply chain challenge that has arisen from a particular economic hardwiring created by the globalization era. Whether it is finished products, intermediates or components, the world is dangerously dependent on a limited number of suppliers. Even as importers, the production centers have built their own sourcing chains. How to introduce greater resilience and reliability is today central to de-risking the global economy. All of us need more options and must work to create them. The second is the technology challenge, which grows by the day given our reliance on it for more aspects of our daily life. The digital era has given it an altogether different connotation because it is so intrusive. It is not just our interests that are at stake, but often the most personal of our decisions and choices. Such an era demands more trust and transparency. But in fact, we are seeing the reverse where technology providers are concerned. The third is the challenge of over-concentrations stemming from the nature of globalization. They are heightened by unpredictability and opaqueness. We discovered this most sharply during the COVID period. But from time to time, we are also reminded when market dominance is weaponized. For the global south, this is particularly serious given the extent of its dependence. These three phenomena have come together particularly impactfully when we consider the evolution of critical and emerging technologies. And we all know that this is indeed the era of AI, of EVs, chips, green and clean technologies. What we are confronting is no longer a matter of comparative economic advantage, if it ever was. We are actually talking about the future of the global order. Where do the solutions lie? There are no easy answers, nor indeed a limited number of them. To create a more safe, secure and cooperative world, we clearly need greater international cooperation. Only that can serve to mitigate unilateral demands, economic domination or technology assertions. For India, this means moving across a broad front of domains that all contribute to comprehensive national power. It requires a massive upgrade of our skills base. It suggests an environment that promotes startups and talent. It will benefit from easier to do business and a modern infrastructure. But most of all, it demands robust manufacturing that alone can provide the foundation for technology development. As the most populous country that will be the third largest economy very soon, our goals and ambitions cannot be determined by the goodwill of others. We must build deep national strengths during the Amrit Kal that will drive the transition towards becoming a developed economy and a leading power. This is the vision of the Modi government, and our initiatives and programs of the last decade are aimed to this very end. Perhaps there is no better audience to appreciate it than one in Pune, which has such a long record of industrial manufacturing. I thank you all for your attention and wish you productive deliberations. और बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में पहुंचे हैं। सीएम योगी ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है। आनंदीबेन पटेल को पुरस्कृत भेंट की है। रोम रोम में राम नामक पुस्तक उन्होंने भेंट की है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में राजभवन में पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने
राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है। राज्यपाल को इस दौरान उन्होंने एक किताब भी भेंट की है। रोम रोम में राम नामक एक पुस्तक है, ये उन्होंने शिष्टाचार भेंट के तौर पर उन्हें दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में राजभवन में पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट किया है और इस दौरान उन्होंने एक छोटा सा तोहफा भी राज्यपाल को दिया। आनंदीबेन पटेल को उन्होंने एक किताब दी जिसका नाम है रोम रोम में राम। तो बड़ी अहम जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं सीधे लखनऊ से, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं राजभवन में और यहां पर उन्होंने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है और मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात दोनों की हुई शिष्टाचार भेंट, जिसमें राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद से पुस्तक भी उनको भेंट की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। जोश, यही उत्साह जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी, अत्यंत सरल, मेरे बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं। और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने पुराने चेहरे, जिनके साथ मुझे संगठन में काम करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे निकट जाकर के प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं।
ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मुझे, जो आप मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा? आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा? आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सबने मान लिया था बस हो गया, ताला लग गया। माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी, उसमें भी ऊर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है। इस खाद कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस खाद कारखाना से पूर्वी भारत के किसानों को बहुत लाभ होगा। साथियों,
भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। मोदी ने उन गरीबों की भी चिंता। तो धनबाद दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से लोकसभा में एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा इस बार एनडीए का है और 370 पार का बीजेपी का है। तो इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। ये मैं दिखाऊंगा कि हम 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि इकोनॉमी को इस स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं। 8.4% हाईएस्ट ग्रोथ इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट। ये रहा, जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबली कंटिन्यूअस ग्रोथ रहा है देश का, और दुनिया के देशों में से सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इकोनॉमी आज इंडिया का है। नेक्स्ट। और ये मैं, क्योंकि काफी सारे लोग अर्थव्यवस्था के बारे में काफी सारी चीज बोलते हैं, ये रहा यूपीए का जो लास्ट डेकेड का परफॉर्मेंस का, जो लास्ट स्टेज में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 5.3% डिक्लाइनिंग ग्रोथ। और ये रहा मोदी जी और एनडीए का परफॉर्मेंस। दिस इज द स्टार्क डिफरेंस, दिस इज द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट between politics of performance and the lost decade of corruption and cronyism. Next. ये और भी डेटा हैं। यूपीए के टाइम के इन्फ्लेशन 9.4%, पिछले 10 साल के इन्फ्लेशन 5.4%, एवरेज इन्फ्लेशन 8.1 वर्सेस 5.1। मैक्सिमम इन्फ्लेशन यूपीए के टाइम में 15.3%, और डबल डिजिट इन्फ्लेशंस के 10 क्वार्टर यानी कि 2.5 साल यूपीए के इस लॉस्ट डेकेड में इन्फ्लेशन डबल डिजिट के लेवल्स पे थे। नेक्स्ट। ये और भी आंकड़े हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स कहां थे और कहां है, टोटल एक्सपोर्ट्स, एफडीआई, जीएसटी कलेक्शंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप देखिए, इट इज ऑलमोस्ट डबल्ड इन द लास्ट 10 years, एंड जॉब्स क्रिएटेड हैव बीन मोर देन 12 to 14 times. नेक्स्ट। तो ये परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का, और जो मैंने नंबर दिखाए हैं आपको, ये कोई मैजिक वॉन्ड से नहीं आया।
ये एक सही नियत, डेडिकेटेड गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नेंस और एक बहुत ही एक स्ट्रांग फाइनेंशियल सेक्टर जो यूपीए के लॉस्ट डेकेड में आप जानते ही हैं एनपीएस, क्रोनी लेंडिंग और 98% ऑफ द बैंकिंग सिस्टम्स नेटवर्थ, ये सुन लीजिए आप, 9 groups had cornered 98% of the banking system's net worth. Concentration of risk जो यूपीए के समय में हुआ था, और आज देखिए बूमिंग क्रेडिट ग्रोथ, जब दुनिया के जाने माने अर्थव्यवस्था में यूएस जैसे इकोनॉमीज में उनके बैंक्स फेल हो रहे हैं, हमारे बैंक्स, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर is amongst the strongest in the world. It is inclusive, it is affording credit to startups, entrepreneurs, और NPA's decadal low of 3.9%. Next. तो बहुत ही डीप पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सरकार, फ्रेजाइल 5 to top 5 जैसे मैंने कहा, poised to be in the top 3, fastest growing economy in the world for several years. और हाल ही में एक नोबेल प्राइज विनर माइकल स्पेंस ने कहा कि देश भारत का डिजिटल इकोनॉमी जो है दुनिया के सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे इफेक्टिव डिजिटल इकोनॉमी है। और बैंकिंग सिस्टम, और जैसे मैंने कहा, बहुत ही एक स्ट्रांग फाइनेंशियल सेक्टर नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा करके रखा है। नेक्स्ट, ये और काफी सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टार्टअप्स भी उभरे हैं, एफडीआई भी हुआ है, और सरकार के रिसोर्सेस के साथ ये ग्रोइंग इकोनॉमी का एक डायरेक्ट इंप्लीकेशन है कि सरकार के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है। आप जानते ही हैं कि हम रिकॉर्ड नंबर्स पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 11 लाख करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, 34 लाख लोगों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, 11 करोड़ हाउस होल्ड्स पिछले 3 साल में टैप वाटर, सेफ टैप वाटर उनको मिलने को मिला है। और ऐसे सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो डायरेक्टली एक कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है ऑफ अ ग्रोइंग स्ट्रांग इकोनॉमी। नेक्स्ट, ये थोड़ा मैं भी प्लग कर रहा हूं कि कल आपने देखा कि रिसोर्सेस और ग्रोथ इकोनॉमी का एक और नतीजा यह है कि जो 65-75 साल से जो हम कर नहीं पाए हैं सेमीकंडक्टर और हाईटेक की दुनिया में, हम आज हमारे पास, सरकार के पास रिसोर्सेज हैं कि हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और जो कल आपको कैबिनेट से इंफॉर्मेशन भी मिला कि 16 बिलियन का अप्रूवल्स हुआ है कल, 16 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं सेमीकंडक्टर में वो 2.5 लाख करोड़, 2 साल में 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। नेक्स्ट, ये आप सुन चुके हैं लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि ये पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर, ये हाई ग्रोथ, ये 8.4% ग्रोथ जो हम देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहनत से और उनकी नीतियों से जो हमको देखने को मिल रहा है। तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।